Good morning, children. This is class 4, Value Education. And today we are going to study chapter number 2, The Value of Time. Children, I would like to tell you about the moral or value of this lesson. This is the value. I mean to say this chapter or this story is based on this theme or moral, that is punctuality. Punctuality, what does it mean? समय की पाबंदी और समय का पालन. ठीक है. If anybody is very much particular about doing things at the right time, we say that child or that person is very punctual. Okay. And punctuality, he is observing or taking a practice of punctuality in his life. Okay. Now the theme the name of this, the title of this chapter is the value of time, यानी समय की कीमत. हम ये देखने जा रहे हैं. We will study this part first, then we will come to the actual chapter. You get up at a certain time every day to go to school. Your school also has a timetable which you follow every day. When you watch television, you know exactly at what time your favorite cartoon show would come. Everything around us has a set time. This makes things easier and orderly for us. If you are not punctual, things would go out of hand. इसका क्या मीनिंग हुआ कि एवरीडे आप सुबह उठते हो, टाइम से तैयार होते हो, आपको पता है कि यू हैव टू लीव और टू पिक अप द स्कूल बस at this particular time, then you follow the timetable. First period में ये होना है, second में ये होना है. You know, when you come back home, you have to be punctual in all the activities. You have to do homework at this time. Then you have to play at what time. You have to eat your dinner. Then if you have to see television, so if you don't go according to the timetable, everything goes wrong. Okay, so punctuality is very necessary in our life. Now this story is based on a little boy whose name was Sonu. Okay, we will start the story from here. So we will see what happens in this story. I will read and I will explain you. Okay. Mom, Sonu came back from the school shouting at the top of his voice. What happened? Why are you so excited, Sonu? asked his mother. सोनू जो था वो स्कूल से क्या हुआ, वो चिल्लाता हुआ आया, अपनी माँ को पुकारता हुआ आया. तो उसकी माँ ने पूछा, उसको लगा कि बहुत एक्साइटेड है. शी आस्क्ड कि क्या हुआ, तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो? टुमारो वी आर गोइंग ऑन ए पिकनिक. आवर टीचर इज़ टेकिंग अस टू वंडरलैंड. आई वुड बी टेकिंग ऑल दोज राइड्स एंड स्विंग्स. उसने बोला कि कल हमें पिकनिक पे जाना है और हमारी टीचर हमको लेके जा रही हैं और वहाँ पे बहुत सारे झूले होंगे, बहुत सारे ऐसे जिससे हम मेरा it would be इससे बहुत सारा मनोरंजन होगा. हम लोग स्विंग से जाएंगे, झूले झूलेंगे और तरह के जो झूले वहाँ लगे हुए राइडिंग करेंगे और इससे हमारा मनोरंजन होगा. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज. It would be a day full of fun and no studies. He was very happy because the full day he was going to have fun and no studies. Sonu was very excited for tomorrow's picnic और वो बहुत ज़्यादा excited था कि वो कल दूसरे दिन पिकनिक पे जा रहा है. In the evening he went with his mother and brought snacks, chocolate and juice. Later he took out his favorite cap and boots. He kept all the stuff in his picnic bag. Sonu could not stop smiling. He was very happy. In the evening वो अपनी मम्मी के संग मार्केट गया और उसने वहाँ से कुछ स्नैक्स खरीदे, चॉकलेट खरीदी, जूस खरीदा, जूस की बॉटल खरीदी. एंड लेटर ऑन व्हेन ही केम बैक ही टुक आउट हिज फेवरेट कैप. उसने एक कैप जो थी उसकी टोपी थी और उसके स्पेशल बूट्स, बिकॉज टुमारो ही वॉज नॉट गोइंग टू वेयर स्कूल शूज़ ऑफ द यूनिफॉर्म. सो एंड ही केप्ट ऑल दिस थिंग्स eatables in the picnic bag, cap and eatables and all, and he was smiling because he was very happy. Then later when his mother came back from the office,
When his father came back from the office, he kept talking about his picnic. He told his father what all he had planned to do. जब उसके फादर ऑफिस से लौटे तो उसने उन्हें भी बताया कि उसको कि कल मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ और क्या क्या मैंने तैयारी इसकी की, क्या क्या प्लानिंग करी है. आफ्टर हैविंग डिनर सोनू स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न. खाना खाने के बाद सोनू ने टेलीविज़न को ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया. सोनू said his mother, if you start watching television at this time, you would not be able to get up on time. Remember, you have to go for the picnic. You have to get up half an hour before the usual time. So please go to bed now and sleep early. जब उसकी माँ ने, उसकी मदर ने उसको देखा और कहा कि तुमने टेलीविज़न देखना शुरू कर दिया है तो तुम सुबह जल्दी टाइम से नहीं उठ पाओगे, और याद रखो कि तुम्हें कल पिकनिक पे जाना है और तुम्हें आधा घंटा पहले पूरी तैयारी करनी है, उठना है, पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि उसकी बस आधा घंटा पहले आने वाली थी इसलिए. सो प्लीज़ गो टू बेड एंड नाउ स्लीप अर्ली. उसने कहा कि तुम सो जाओ ताकि तुम सुबह जल्दी उठ पाओ पिकनिक जाने के लिए. नो मॉम, I want to watch television today. There is no homework for tomorrow. He was very happy because he had not to do any homework for next day. He said कि उसने बोला कि मैं तो आज टेलीविज़न देखूँगा क्योंकि आज तो मुझे होमवर्क करना ही नहीं है. And so I want to watch more shows today. I will get up tomorrow. Don't worry. Having said this, Sonu kept on watching TV till late night. उसने कहा कि मुझे होमवर्क तो करना नहीं है और इसलिए मैं आज ज़्यादा शो देखूँगा, टेलीविज़न के बहुत से शोज़ देखूँगा, फिर भी मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगा. डोंट वरी, मेरे बारे में फ़िक्र मत करो, मैं उठ जाऊँगा. हैविंग सेड दिस, सोनू केप्ट वॉचिंग टीवी टिल लेट नाइट. और ये कह के वो काफ़ी रात देर तक टीवी देखता रहा. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. द नेक्स्ट मॉर्निंग सोनूज मदर ट्राइड टू वेक हिम अप. दूसरे दिन सुबह उसकी माँ ने उसको उठाने की कोशिश की, बट ही वॉज डीप अस्लीप. बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था. सोनू गेट अप और यू वुड मिस द स्कूल बस. उसकी माँ ने कहा कि सोनू करके उसको आवाज़ दी और कहा कि तुम उठो, अदरवाइज़ तुम अपनी स्कूल की बस को मिस कर जाओगे, तुम्हारी बस छूट जाएगी, तुम नहीं जा पाओगे स्कूल और वहाँ से पिकनिक नहीं जा पाओगे. एटलीस्ट सोनू गॉट अप कंप्लेनिंग अबाउट गेटिंग अप सो अर्ली. फिर भी वो बड़ी मुश्किल से उठा और उसने शिकायत करी कि तुमने मुझे क्यों उठा दिया जल्दी. ही लुक्ड एट द वॉच एंड सेड, इट इज़ ओनली 7 AM. माई स्कूल स्टार्ट्स. उसने क्या बोला कि अभी तो सिर्फ 7 बजा, मेरा स्कूल तो वही और तरह दिन की तरह यूजुअल जैसे टाइम पे स्टार्ट होता था. वो उसके बारे में सोचने लगा कि अभी तो मेरे पास टाइम है, मैं आराम से तैयार हो जाऊँ. सडनली ही रिमेंबर्ड दैट हिज बस वुड बी. अचानक उसे याद आया कि उसकी बस जो है, बस वॉज कमिंग हाफ एन आवर अर्लियर टुडे. उसे याद आया कि अरे आज तो मेरी बस आधा घंटा पहले आनी है. ही रश टू द बाथरूम विद हिज टॉवल एंड शाउटेड, मॉम प्लीज़ हेल्प मी, ओनली 10 minutes आर लेफ्ट. I don't want to miss my school bus. उसने क्या किया, वो घबरा गया और एकदम से बाथरूम में भागा. तो वो बाथरूम गया और अपनी मम्मी से चिल्लाया कि प्लीज़ हेल्प, मेरी हेल्प करो क्योंकि ओनली 10 minutes लेफ्ट, 10 मिनट रह गए हैं बस, और आई डोंट वांट टू मिस माई स्कूल पिकनिक. उसने कहा कि अगर मुझे देर हो जाएगी तो मैं पिकनिक पे नहीं जा पाऊँगा. सोनू मिस द ब्रेकफास्ट एंड रश टू द बस स्टॉप. उसने अपना मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट भी छोड़ दिया, नहीं खाया, और वो जल्दी से बस स्टॉप की तरफ भागा जहाँ उसकी स्कूल की बस आने वाली थी. बट ही वॉज लेट. लेकिन वो लेट हो चुका था. ही सॉ द स्कूल बस लीविंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रोड. ही मिस द बस. जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उसने देखा कि उसकी बस जो है वो उसके घर के सामने से पास हो चुकी है, गुजर चुकी है, और वो कॉर्नर ऑफ द रोड है, दूसरी तरफ मुड़ के आगे जा रही है. एंड ही हैड मिस द बस. उसकी बस उससे मिस हो गई थी, उसकी बस छूट गई थी, यानी वो ही वॉज नॉट रेडी टू पिक अप द बस. नथिंग कुड बी डन नाउ. उसके बाद कुछ नहीं हो सकता था. सोनू स्टार्टेड क्राइंग लाउडली. वो बहुत ज़ोर से रोने लगा. ही केम बैक होम एंड हग्ड हिज मदर. उसने क्या करा, वो घर वापस रोता हुआ आया और अपनी माँ से लिपट गया. मॉम आई एम सॉरी, यू वर राइट. उसने क्या कहा कि मम्मी मुझे दुख है, आई एम फीलिंग सॉरी. तुम सही थी, तुम कह रही थी कि जल्दी उठो और मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी. नाउ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम. उसने कहा कि अब मैं समझ गया हूँ समय की कीमत को, कि समय से अगर मैं उठ जाता तो मैं अपनी बस को मिस नहीं करता. यू कैन सी द फोटोग्राफ हियर दैट ही इज़ रशिंग फॉर बस, बट बस हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट हिज स्टॉपेज, सो ही हैड मिस द बस. एंड ही अंडरस्टूड. Now one more theme is here, one moral we can say.
Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. This is very something very important. These lines are very important. Everyone should follow these lines in their life, either children or elderly persons. Especially you children, you should go to bed early so that you should be able to get up or rise from the bed early. And this habit makes a man healthy, wealthy, and wise. Okay, so this is the end of the story, children. Okay, hope you have understood the this lesson, or we can say story about this son, about this boy Sonu. And I am sending question and answers of the exercise of this chapter in PDF. You may see that. Okay, you will get the answers in that, and you revise it and learn it for the examination, because this chapter will be included in your first unit examination. Okay, thank you.